Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about a very important question, that is Consumer Protection Act 2019. Friends, I would like to inform you, in my previous video I have already discussed with you a very important topic too, that is the Consumer Protection Act 1986. So if you want to watch that videos too, so I'm going to share the link in my description box so you can watch from there. And one more thing I would like to inform you, that both the questions are very much important. It means the Consumer Protection Act 1986 can also come in your examination and the Consumer Protection Act 2019 can also come in your examination. So ultimately I can say both the questions are very important. So let's start our today's question, that is Consumer Protection Act 2019. So first of all, the 1986 CPA was the old one. So there is some changes which made in the 2019 Consumer Protection Act. So चलिए read it out करते हैं. So the Consumer Protection Act 2019. The 2019 Consumer Protection Act brings about fundamental changes to the CPA 1986. Is nothing but there is a lot of changes has made in the CPA 1986. Now it became the Consumer Protection Act 2019. सो अभी जो है रिसेंटली 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ फंडामेंटल चेंजेस की गई थी जो कि 1986 में बनाया गया था और वो चेंजेस 2019 में की गई है. इस वजह से वी हैव अ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज़ 2019 विद सम फंडामेंटल चेंजेस. सो यहाँ पर देखते हैं कि ये बिल कब पास हुआ था और कब ऑफिशियली ये जो बिल है वो पूरी तरीके से पास हो चुका था. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं. On 6th of August 2019, the Indian Parliament passed the Consumer Protection Bill in the Parliament, which aims to provide the effective administration and the settlement of consumer dispute. इसका मतलब ये हुआ कि 6 अगस्त 2019 में 6 ऑफ अगस्त को इंडियन पार्लियामेंट ने बिल बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 का, और उस बिल का एम था कि हम कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को इफ़ेक्टिवली कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें और कैसे इनको सेटलमेंट करें. ये बिल 2019 6 अगस्त को बनाया गया था और हमारी पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया था. The Consumer Protection Act 2019 receives the assent of the President of India and was published in the official gazette on 9th August 2019. मतलब 6 अगस्त को बिल पास ऑन किया गया था पार्लियामेंट में और हमारी प्रेसिडेंट ने 9th of August 2019 को इस बिल को ऑफिशियली पब्लिश्ड करवाया था. ठीक है, सो यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल 2 डेट्स जस्ट बिकॉज फॉर द ऑब्जेक्टिव में इस डेट्स के आने के ज़्यादा चांसेस हैं. बिल पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? ऑन 6 ऑफ अगस्त 2019, बट ऑफिशियली ये कब पब्लिश किया गया था बाय आवर प्रेसिडेंट साइड? ऑन 9th ऑफ अगस्त 2019. कौन सा बिल? 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल. ओके, सो ये था जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हाईलाइट्स एंड फीचर्स ऑफ CPA 2019 के बारे में. So now we are going to discuss about the features and provisions and we can say highlights of Consumer Protection Act 2019. So very first point we have, that is covers e-commerce transactions. It means the CPA 2019 covers electronic commerce transactions. इसका मतलब ये हुआ, the new act has widened the definition of the consumers. If we watch the Consumer Protection एक्ट 1986 ना, सो वहाँ पर कंज्यूमर्स का डेफिनेशन वाज द पर्सन और एनी पर्सन हु बाय एनी प्रोडक्ट और हु हायर और अवेल एनी सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज कंज्यूमर. मतलब कोई भी पर्सन गुड्स खरीद रहा है या हायर कर रहा है उसे हम कंज्यूमर कंसिडर करते थे, बट इस डेफिनेशन को थोड़ा और एलॉबरेट और उसमें कुछ चेंजेस की गई है और इस एक्ट के द्वारा कहा गया है कि एनी पर्सन who buys any goods whether through offline or online transaction, any electronic means and mode, teleshopping, direct selling or multi-level marketing is called as consumer. मतलब कंज्यूमर के डेफिनेशन में एक चेंजेस की गई है और ये कहा गया है कि कंज्यूमर ये वो होता है कोई भी पर्सन जो गुड्स को खरीद रहा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन. मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू खरीद रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑनलाइन, और इफ़ वी आर विजिटिंग एट अ शॉप एंड परचेजिंग एनीथिंग फिजिकली दैट इज़ ऑफलाइन. सो ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो है कंसिडर किया गया है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक.
So electronic B. So it is nothing but the definition has now include any person who buys any goods whether through online or offline or any online transaction, electronic means, teleshopping, direct selling and multi-level marketing. Okay, the earlier act did not specifically including commerce transactions. मतलब जो e-commerce transaction था हमारे इससे पहले वाला जो एक्ट है which was CPA 1986 उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया था और ये फैसिलिटी देता हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन पेक्यूनरी लिमिट्स. पेक्यूनरी लिमिट्स का मतलब होता है कि आपकी जो मॉनेटरी लिमिट्स होती है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है. इफ़ यू रिमेंबर 1986 में मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम का अमाउंट बताया था इट डज़ नॉट एक्सीड्स ऑफ ₹20 lakhs. स्टेट कमीशन का मैंने बताया था 20 lakhs to 1 crores एंड मैंने नेशनल कमीशन का बताया था अबव 1 crores. ठीक है, सो ये पेक्यूनरी लिमिट्स बिकॉज द हाई पॉपुलेशन वी हैव, नंबर्स ऑफ प्रोडक्शंस वी आर डूइंग, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे. सो गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, सो इनके अमाउंट भी बढ़ जाएंगे. सो इसीलिए CPA 2019 में पेक्यूनरी लिमिट्स यानी कि मॉनेटरी लिमिट्स को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है, सो चलिए रीड करते हैं. द डिस्ट्रिक्ट फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डील विद कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पनसेशन इफ एनी क्लेम डज नॉट एक्सीड्स ₹1 crores. इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के तहत हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने रुपए तक के सेटलमेंट पे वर्कआउट करता है, ₹1 crores. ठीक है, ₹1 crores डिस्ट्रिक्ट फोरम, जहाँ के 1986 सिर्फ 20 lakhs पे डील करती थी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, लेकिन 2019 डिस्ट्रिक्ट फोरम कहाँ कितना अमाउंट तक डील करता है, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करता है 1 crore तक के गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको रेड्रेस और उसको सेटलमेंट करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम. अगर अमाउंट आपका 1 crores है और 1 crores और डज नॉट एक्सीड्स ₹10 crores, मतलब 1 crore और 10 crores के बिटवीन का कुछ अमाउंट होता है तो उसको सेटलमेंट करती है स्टेट कमीशन, और 10 crores एंड अबव होगा सो उसको सेटलमेंट करता है हमारा नेशनल कमीशन. ओके, सो यहाँ पर पेक्यूनरी लिमिट्स हमने पढ़ा. डिस्ट्रिक्ट फोरम जो 1 crores से ऊपर नहीं जाती, अप टू 1 crores तक डील करती है, रेजोल्यूशन करती है. स्टेट कमीशन क्या करता है, अमाउंट दैट Indian rupees 1 crore but does not exceeds ₹10 crores, and national commissions above and exceeds 10 crores के ऊपर का सेटलमेंट करता है. Then we have third point, that is e-filing of complaints. मतलब complaints can be filed electronically. Okay, the CPA provide flexibility to the consumers to file complaints with the jurisdictional consumer forum located at the specific place residence work of the consumer. मतलब कंज्यूमर का जो रेसिडेंशियल वर्क है या फिर वो जहाँ पर भी रहता है, जो वर्क प्लेस है या रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर एक जुरिस्डिक्शन कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स जैसे. सो वहाँ पर भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है. मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू द CPA 2019 दैट यू कैन फाइल complaints electronically too. ठीक है, मतलब the CPA 2019 also contains enables in provisions for the consumers to file complaints electronically and for hearing and examining parties through video conferencing. मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई कंप्लेंट दर्ज करवा भी रहे हो, सो फिजिकल प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल आप कैसे करोगे, सो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया गया है ताकि आप प्रोडक्ट्स को एग्जामिन कर सकें. ठीक है, सो ई फाइलिंग इज़ it's become very easy for all the people, all the consumers nowadays as according to the Consumer Protection Act 2019. Then we have next point, that is establishment of Central Consumer Protection Authority, that is CCPA. Friends, right now we are doing a study about the CPA. Now what is CCPA? That is Central Consumer Protection Authority. ये एक ऐसा CPA 2019 ने प्रपोज किया है जहाँ पर इसको एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को देखता है और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड वर्क होता है, कोई इंक्वायरी करनी है या कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, लॉ वायलेशंस हो रहे हैं, सो ये सारी चीज़ों की देख रेख करता है CCPA. It's a we can say regulatory authority which is also known as CCPA with wide powers and enforcement. CCPA के पास पावर विंग्स होते हैं.
ठीक है, ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ है जैसे कि CCPA will have an investigation wings headed by a Director General which may conduct inquiry investigation into consumers law violations। मतलब CCPA के पास investigations wings होते हैं, इसके पास extra powers होते हैं जो क्या कर सकता है, देख सकता है, कोई इंक्वायरी करनी है वो कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पेनल्टीज चार्ज कर सकता है, पनिशमेंट्स भी दे सकता है। CCPA दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। देन वी हैव प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ द टाइम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स हु मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट, who produce the products is nothing but called as manufacturers and the producers, ठीक है। So there are increased liability risk for the manufacturers as compared to product सर्विस प्रोवाइडर एंड द प्रोडक्ट सेलर्स। जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मतलब जो प्रोडक्ट की सर्विसेज कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या प्रोडक्ट को सेल करते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर, उनसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी या रिस्क होता है वो मैन्युफैक्चरर्स के पास होता है, हु मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ गिवन द सर्टेन एग्जाम्पशंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर न्यू एक्ट फ्रॉम लाइबिलिटी क्लेम्स सच एज द प्रोडक्ट सेलर्स विल नॉट बी लाइबल व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन मिसयूज्ड और ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। यहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए एक्शन लिया गया है कि इन केस आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट इज इट हैज़ बीन मिसयूज्ड, मतलब गलत तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है, ऑल्टर्ड यानी अलग तरीके से उसमें ऑल्टरेशंस करके या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रियल प्रोडक्ट को अलग तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, कस्टमर को बेचने के लिए कस्टमर को मिसलीड किया जा रहा है मॉडिफाइड एंड ऑल्टर्ड या मिसयूज्ड प्रोडक्ट के द्वारा। सो यहाँ पर द प्रोडक्ट सेलर विल नॉट बी लाइबल फॉर सच थिंग्स, ठीक है। दैट इज़ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मतलब जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा अगर सामने वाला ख़रीदने वाला प्रोडक्ट का गलत यूज़ कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला पॉइंट। देन वी हैव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वी नो दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं मतलब गुड्स को बेचने के लिए गलत तरीक़ों से भी बेचने की ट्राई किया जाता है। सो वहाँ पर हमारी जो सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, इसके द्वारा जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो यहाँ पर क्या कर सकती है, पेनल्टीज चार्ज करना या लॉ के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स वगैरह दे सकती है इन केस ऑफ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। Then we have next point that is penalties for misleading advertisement. If the endorsements and the endorser, or I can say the advertisers or the marketer, if they are using misleading or they are doing misleading advertisement to mislead the consumers, so यहाँ पर उनको कुछ penalties चार्ज की जाती है, ठीक है। पेनल्टीज चार्ज करना यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पेनल्टीज चार्ज की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग तरीके से आपको रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे द CCPA में इम्पोज द पेनल्टी ऑफ रुपीज़ इंडियन या दैट इज़ INR रुपीज़, ठीक है, 10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs रुपीज़ तक का यहाँ पर जो है पेनल्टी चार्ज किया जाता है इन केस इफ़ यू आर misleading, if you are using or if you are doing misleading advertisement as a marketer or the endorser, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट का और अगर ये देख लेता है CCPA किसी जांच पड़ताल के द्वारा, सो यहाँ पर उस मिसलीडिंग करने वाले एडवर्टीज़मेंट एजेंसी को या उस एडवर्टाइज़र को यहाँ पर या उस पूरी एजेंसी को 10 lakhs रुपीज़ तक का पेनल्टी पे करना होता है। इवन साथ ही साथ 2 years का इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब जेल और कैद। देन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, ठीक है, is the fine may be extended to Indian rupees 5 lakhs and imprisonment of up to rupees 5 years। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब और अलग तरीके से आपने कुछ यहाँ पर बहुत मिसलीड किया है, सो वहाँ पर आपका फ़ाइन यानी कि नॉर्मल जो फ़ाइन स्टार्ट होता है वो रुपीज़ 10 लाख से होता है और 2 years का इम्प्रिजनमेंट होता है एडवर्टाइजर्स को इफ़ दे आर डूइंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत तरीके से प्रोडक्ट को दिखाना, ठीक है, या जो प्रोडक्ट एक्चुअल है उसको वैसा ना दिखाते हुए अलग बताना और उसको देख के एडवर्टीजमेंट को देख के कस्टमर इन्फ्लुएंस होकर गुड्स को खरीद लेगा, बट
बाद में गुड्स अगर कुछ और रहता है सो उसे हम कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो 2 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना। लेकिन और अगर ज़्यादा आप ऑफेंसिव एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फाइन में भी एक्सटेंडेड टू ₹5 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो इंक्रीज अप टू 5 years, ठीक है। Now we have next one, that is provisions for the alternate dispute resolutions. CPA has made the alternate dispute resolutions also for the quick and the simple and the speedier resolution of the disputes of the consumers. Consumers के जो भी disputes होते हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उस बर्डन को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स बहुत सारी होती है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन एंड वर्क प्रेशर होता है। सो यहाँ पर अगर कोई डिसीजन क्विकली लेना है सो उसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशंस भी बनाया गया है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, जहाँ पर ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्विकली स्पीडियरली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है इन अ सिंपल वे। देन वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इंक्लूड्स ऑफेंसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स का मतलब होता है विच इज़ नॉट जेन्युइन, विच इज़ फेक। फेक गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको इंपोर्ट कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, विद और अडल्ट्रेटेड कंटेंट्स। सो यहाँ पर ऐसे सिनारियो में भी रिजर्व किया जाता है इन लोगों के लिए इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल होने के यहाँ पर क्या होते हैं, चांसेस होते हैं इन केस वेर अ कंज्यूमर हैज़ सफर्ड इंजरी। अगर उस गुड्स को कंज्यूम करने से या उसको वेल करने से कंज्यूमर को कुछ इंजरी हो रहा है, ठीक है, कुछ ग्रीवियस हर्ट मतलब सीरियस हर्ट हो रहा है, तकलीफ, पेन, या फिर स्प्यूरियस ऑडल्ट्रेटेड गुड्स की वजह से अगर किसी पर्सन या कंज्यूमर की डेथ होती है, सो ऐसे सिनारियो में जेल होती है सेलर को, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। Then we have next and the last point, that is new grounds to file complaints. New grounds to file complaints is nothing but under CPA 1986. Complaint could be filed only if unfair trade practices and restrictive trade practices. मतलब अगर कुछ गलत तरीके से ट्रेड हो रहा है या अगर कोई ऐसी चीज़ है जिन पे ट्रेड करना रेस्ट्रिक्टिव है, अगर आप वो भी ट्रेड कर रहे हो, सो 1986 के द्वारा यहाँ पर क्या था, बहुत सारी पेनल्टीज़ या बहुत सारे प्रोसीजर्स लिए जाते थे, बहुत सारे एक्शंस लिए जाते थे। सो नाउ डेज वी हैव न्यू ग्राउंड्स टू फाइल द कंप्लेंट्स। मतलब ऑनलाइन वी कैन फाइल द कंप्लेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। इफ़ you have any complaint related to product, so you can do complaints immediately with the app and with the particular website. This is nothing but the new grounds to file complaints. So friends, we have completed the very important topic here, that is Consumer Protection Act 2019. If you want to watch my previous video too, that was the Consumer Protection Act 1986, so I'm going to share the link on the description box so you can watch from there. So we have completed this topic here. Bye bye, have a nice day, take care everybody. Do like and subscribe to my YouTube channel for the more videos. Show some love, keep supporting and keep watching.